میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس میں راضی اس میں ہم بندے راضی، اس کی رضا اس بات میں ہے، اگر وہ راضی اس پر ہے کہ ہماری گردنیں مار دے تو ہم اس میں راضی ہیں۔ اور یہ صرف لفظ نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام یا جتنے بھی ہمارے مشائخین، انبیاء کرام، شہدائے عظام اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان سب کی کہانیاں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے آج کے دور کے حساب سے موازنہ کیجئے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا کسی کے مصیبت لگ جائے یا کسی کا بیٹا مر جائے یا کسی کے باپ کا سایہ اٹھ جائے یا کسی کے سر سے شفقت مادری کا سایہ ختم ہو جائے یا کسی کو خسارہ ہو جائے، کسی کا کاروبار ڈوب جائے یا کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے یا کوئی کان کا بہرا ہو جائے یا کوئی پاؤں کا لنگڑا ہو جائے یا کسی کے ہاتھ لولے ہو جائے یا کوئی سر کا اچانک سے بالوں والا تھا پھر گنجا ہو جائے یا کسی کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، بگڑ جائے چہرہ، تو ہمارے اور آپ کے لبوں پر شکوے آتے ہیں، تانے آتے ہیں اور جملے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، طعن و تشنیع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار کا خسارہ ہوا، بڑا کنجوس آدمی تھا، زکوٰۃ تو دیتا ہی نہ تھا، کوئی فقیر دروازے پر آ جائے تو اس کے دامن سمٹ جاتے تھے، کاروبار میں مدہ پڑ جاتا تھا اور واویلا مچاتا تھا کہ ہمارے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور رب تعالیٰ نے تو ہم سے نظریں پھیر لی معاذ اللہ۔ اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا جانی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے پاپوں کا اثر ہے، اس نے جو گناہ چھپ چھپ کے کیے ہیں جو ہمیں تمہیں معلوم نہیں، چہرے پر تو ولی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں اندر سے بڑا کالا ہے۔ اور کوئی نظریں جھکا کے چل دے تو کہتے ہیں ارے یوں ہی نظریں جھکا کے چلتا ہے مگر اندر ہی اندر بہت دور تک دیکھتا ہے۔ کوئی اگر سر اٹھا کے چلا تو یوں کہا جاتا یہ تو بڑا نظر باز ہے، نظر کا بہت تیز ہے، اس کی نگاہیں بہت گندی ہے، پتہ نہیں کن کن عورتوں کو تاڑتا رہتا ہے۔ اس طرح کے جملے ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مصیبتیں آتی نہیں ہیں کہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں آتی نہیں ہیں کہ باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، کوئی نقصان پاتا نہیں ہے، ناکامی سے گزرتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھا دی جاتی ہے۔ اے میرے عزیز سنو تو ذرا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اور غور کر کے ذرا تو مجھے بتاؤ، ہمارے ایک سوال کا جواب تم دینا، وہ جملے کسنے والوں، وہ پھپتیاں پھینکنے والوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر کے بتانا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام تم نے سنا ہوگا، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جسے نمرود نے آگ میں جھونکا تھا۔ کیا وہ ان کے کسی گناہ کا نتیجہ تھا معاذ اللہ؟ کیا وہ گناہگار تھے؟ جبکہ ہمارا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، پھر انہیں ان سزاؤں میں اللہ نے کیوں مبتلا کیا؟ اللہ نے ایسی بلا میں، ایسی آزمائش میں، ایسے امتحان میں انہیں کیوں ڈالا؟ دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھیے سورہ یوسف، آپ کے سب سے عزیز بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں ان کی آنکھیں چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے پیارے، بڑے حسین و جمیل ہیں۔ مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کا حسن دیکھ کر، انہیں پتہ تک نہ چلا کہ ہم نے نیمبو کاٹا ہے یا اپنی انگلیاں کاٹ لی ہے، اتنے محو ہو گئی وہ حسن یوسف میں۔ دوستو پھر بھی اس یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں ڈلوایا؟ کنعان کے اندھے کنویں میں ڈلوا دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے انہیں کوئی سزا دی معاذ اللہ؟
नहीं नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, और आजमाइश उन्हीं की होती है जो अपने पढ़ाइयों में, अपने सब्जेक्ट में, अपने कोर्स में तैयारियां करके बैठता है, तभी तो उसका इम्तिहान होगा। जो पढ़ाई ना हो, जो लिखाई ना हो, जिसने तैयारियां ना करी हो, उसे भला पूछता कौन है, और उसका इम्तिहान भला कौन लेगा? उसे तो ढील दे दी जाती है। अल्लाह खुद फरमाता है वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और उन्हें ढील दे रखी है। भटको, अपनी गुमराही में तुम कितना भटक सकते हो। उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो उनकी इस तिजारत ने उन्हें नफा कुछ न दिया। और उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि काली रातों में जब बिजलियां कड़कती हैं और अपनी उंगलियां वो अपने कानों में ठूंस लेते हैं मौत के डर से, और फिर जरा उजाला होता है तो फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अजीजों, मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें अंधी हो गई, बेटे की जुदाई के गम में रोते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनान के कुएं में डाला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पनाह दी और परवरिश करवाई फिरऔन के मकान में, उसकी हवेली के अंदर, और फिर अल्लाह ताला ने फिरऔनियों को उनके सर पे मुसल्लत किया, और फिर वो दरियाए नील में डबो दिए गए वो सब के सब। और हजरत मूसा अपनी उम्मत को लेकर बाहर निकले। बड़ी बड़ी आजमाइशें आई है मेरे अजीजों। आप जरा दिल पे हाथ रख के बताना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र आपने सुना होगा। हजरात, आपकी तमाम औलादें मार दी गई, आपका बागीचा छीन लिया गया, आपकी हवेली मिसमार कर दी गई, न जाने कितने 100 कमरे थे, 700 दरवाजा खोलने के बाद तब आपके बेडरूम में पहुंचा जाता था। इतनी बड़ी हवेली के मालिक थे, सब मिसमार कर दिया गया, आजमाइशें की गई रब की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीजें किसी गुनाह का नतीजा होती है या किसी को सजा दी जाती है? नहीं नहीं, रब फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जु'i व नक्स, हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। तुमने हमारा रहम देखा है, तुमने हमारा करम देखा है, हमारा कहर नहीं देखा। हम कहार बनकर कभी तुम्हें सजा भी देते हैं और कहार बनकर हम तुम्हें आजमा भी लेते हैं। इसलिए हमारी आजमाइश पर पूरा उतरो। जब कोई मुसीबत लग जाए तो यूं कहा करो कि हम तो अल्लाह के हैं, हम तो कुछ भी ना थे, ये रब ने चाहा तो पैदा कर दिया, अब वो चाहे तो मार दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं आता। वो रब जिसमें राजी है उसमें हम भी राजी हैं। यही तो वजह है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं किसी की मस्जिद को लेकर, और फिर उस पर जब हम मिट्टी डालने लगते हैं तो पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम, ऐ बंदे हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन भाई ने ये 100 रुपए मस्जिद के लिए, एक भाई ने सदका पेश किया और नजराना दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। ऐ बंदे, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और फिर इसी में ले जा रहे हैं, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे। उसके बावजूद हमारे और आपका हाल क्या है? अकड़ ऐसी कि जमीन पर पांव डाले और बस में हो तो वहीं से आग निकाल रहे, पानी की जगह पेट्रोल निकालते नजर आए अपने जिस्मों से, जुमले की जगह जरूरत पड़े तो मुंह से ही तीर और खंजरों की बारिश कर दें। और हकीकत क्या है? मिट्टी थे, मिट्टी में ही ले गए और फिर मिट्टी से ही उठाएंगे। पहले पारे में रब ने फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अपने रब का कैसे इनकार करते हो? वकुंतुम अमवाता, जबकि तुम मुर्दा थे। सुम्मा युमीतुकुम कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, रब फरमाता है तुम मुर्दा था, मैंने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेंगे। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, और फिर मार कर फिर तुम्हें जिंदा करेंगे।
कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। फिर तुम्हें जिंदा करके फिर उसी रब की तरफ पलट कर जाना है। अब आप अंदाजा लगाइए हमारी तुम्हारी हकीकत क्या है। हजरात, हम अपनी जिंदगियों में कोशा तो हैं, लेकिन जरा एक बात बताइए, अब आपने अपनी हकीकत समझ ली, हमने अपनी हकीकत समझ ली, हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है। हम जर्रे नाचीज थे, रब ने चीज बना दिया। हम पानी के नापाक कतरे थे, अल्लाह ने इंसानी वजूद अता कर दिया। ये उसकी मेहरबानी है, ये हमारे तुम्हारे अमल का नतीजा, ये हमारे बाप के अमल का नतीजा नहीं है कि उसने हमें इंसान और मुसलमान और नबी का गुलाम बनाया, बल्कि ये रब का खास फजल है। उसने महज अपनी मेहरबानी और अपने करम से हमें तुम्हें एक खूबसूरत और अच्छी शक्ल अता की और फिर बेहतरीन अमल दिया, ईमान की दौलत दी और साथ में रसूलुल्लाह की गुलामी अता कर दी। इसमें हमारा तुम्हारा कोई कमाल नहीं, ये हमारे रब की रहमत है। और फिर अगर हमारी जिंदगियों में, हमारी इबादत गाहों में और हमारे तालीम गाहों पर अगर कोई हमला होता है या परेशानी आती है या मुसीबतें आन पड़ती हैं, तो जान लीजिए कि ये सब आजमाइश है। जालिमीन कोशिश करते हैं और फरमाने खुदा है, नबी पाक ने फरमाया कि जब कौम बेराह रवी इख्तियार कर लेती है, गुमराही इख्तियार कर लेती है, तो अल्लाह उनके सरों पर जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है। क्या हम और आप ऐसे दौर से नहीं गुजर रहे? यकीनन दौरे हाजिर में आप गौर करेंगे तो मजालिम की इंतहा हो गई और हम आह तक नहीं कर पा रहे, कराह तक नहीं पा रहे, किसी के खिलाफ एक जुमला तक नहीं बोल पा रहे। वजह सिर्फ यह है कि हम अपने रब से डरना छोड़ गए, इसलिए पूरी दुनिया से डरते हैं। लेकिन वो कल्बे मोमिन जिनकी शान ये थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो अल्लाह के दोस्तों की शान, अल्लाह के वलियों की शान, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पे ना किसी का डर है और ना उन्हें किसी चीज का हुज़्न व मलाल। आज की ये जो तारीख है, तारीख 29 जमादुल ऊला, आज के ही दिन हजरत सैयदना सरकार सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा माजिदा, जिन्हें हम दिल्ली वाले और पूरे मुल्क वाले, जहां जहां तक आपका नाम है, पूरी दुनिया वाले माई साहिबा के नाम से जानते हैं, जिनका नाम हजरत सैयदा बीबी जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये ऐसी वलिया कामिला है कि कभी सरकार महबूब इलाही को परेशानी महसूस होती, अपनी वालिदा माजिदा की गोद में आकर सर रख देते, वालिदा शफकत से हाथ सर पर फेरती और दुआ फरमाती, उसी वक्त मसला हल हो जाता। हत्ता के बादशाह वक्त आपकी दुश्मनी पर उतर आया, गियासुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। ये गियासुद्दीन तुगलक बड़ा ही अकड़ वाला बादशाह था, अपने चापलूसों और चमचों के कहे में चलता था। उसके चापलूसों और चमचों ने बता दिया कि ये निजामुद्दीन औलिया ये आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं। आप बुलाते हो दरबार में, लोगों को नहीं आते, इनके यहाँ लोग बगैर बुलाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हटा दिया जाए और ये खुद बादशाह बन जाए। तो दुश्मनी पे उतर आया, धमकी दे गया कि मैं जा रहा हूं बंगाल फतह करने, आने से पहले दिल्ली खाली कर देना। सरकार महबूब इलाही अपनी वालिदा के पास चले गए। वालिदा माजिदा ने कहा, बेटे कैसे मुजमहिल हो, परेशानी बताई। बादशाह धमकी दे गया है, अम्मी वो आएगा तो हमसे दिल्ली खाली करा लेगा। फरमाया, बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो दिल्ली आए ही ना, वो दिल्ली पहुंचे ही ना। जो इस वलिया ने अपनी जुबान से निकाला, तारीख गवाह है, दिल्ली की सरहद पे आया, रात में ऐश मौज मस्ती करता रहा,
बिजली कड़की, बारिश आई, तूफान आया, और वही खैमे की सिल्ली जो लकड़ी का बहुत बड़ी लकड़ी की शहदीर थी, उस बादशाह के सीने पर गिरी, सीने और रीढ़ की हड्डी टूटी और वहीं मर गया। ये एक वलिया की जुबान से निकला हुआ लफ्ज था। ऐ लोगों, आज भी जरूरत है हमारी माँ को कि अपनी औलादों की तरबियत कराए, तो सैयदा बीबी जुलेखा माई साहिबा की तारीख पढ़े कि उन्होंने कैसी मुसीबत में अपने बेटे की परवरिश की थी, सरकार महबूब इलाही को कैसे पाला उन्होंने और कैसी तालीम दी। इतनी गुर्बत थी, जिस दिन खाना घर में नहीं होता, कहीं से कोई इंतजाम नहीं होता और भूख लगती, तो सरकार महबूब इलाही की वालिदा कहती, बेटे आज हम सब अल्लाह पाक के मेहमान हैं। सरकार महबूब इलाही खुद कहते हैं कि हम इंतजार करते थे कि अम्मी किसी दिन कहें, वो दिन कब आएगा जब वालिदा फिर बोलेंगी कि बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह पाक हमें दावत कब भेजेगा। और कहते हैं कि दावत अम्मी के पास ही आती थी, अम्मी हमें बताती थी कि बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ने दावत भेजी है। भूखे प्यासे हैं और उस भूख प्यास को अल्लाह की दावत का नाम देने वाली उस वलिया पे क्यों ना कुर्बान जाए कि जिन्होंने परवरिश की ऐसा बेटा कि आज भी जमाने गुजर गए, 800 साल के करीब, 722 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके दर से फैज जारी है। प्यासा जाए तो पानी दिया जाता है, रूह की तड़प वाला तड़प लेकर जाए तो सुकून पड़ जाता है, ज़हनी उलझनों वाला जाए तो उसे इत्मीनान हासिल होता है, हाँ वो अपना हो या बेगाना हो, सरकार महबूब इलाही सबको भर भर के अता फरमाते। ऐ लोगों, हमने अपनी जिंदगी का तरीका क्या बना लिया। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, बचपने में कोई पढ़ा कोई नहीं पढ़ा, जिम्मेदार बने तो कमाई करने निकल गए, बच्चे के पढ़ाने की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, राशन की जिम्मेदारी, पानी बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, लाइट के बिल भरने हैं, मोबाइल का बिल भरना है, तरह तरह की जिम्मेदारियां, और टाइम पर घर पहुंचना है वरना बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी, उन्हें भी राजी रखना है, वालिदा से भी गुफ्तगू करते रहना है वरना मां नाराज हो जाएगी कि बहू का गुलाम बन गया, ये देखो जोरू का गुलाम टहल रहा है, इस तरह के जुमले ना आ जाए। तो इसलिए इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। हम आओ भगत में लगे रहते हैं, आप हर एक का ख्याल रखना। पूछा गया क्यों, बताया गया मां है हमारी, उनसे मोहब्बत है। बीवी के लिए क्यों, कहा वो इसलिए कि इन्होंने हमें औलाद जैसी दौलत अता की है, उससे मोहब्बत न करे तो किससे करे। अगर औलाद से इसलिए करते हैं कि अगर ये ना होती तो हम बे औलाद कहलाते, आज इसकी वजह से हम साहिबे औलाद कहलाते हैं। सबकी आओ भगत आप कर रहे हैं। एक बात बताओ ना, इनकी मोहब्बतें तुम्हारे दिलों में पैदा हो गई, उस रब से कब प्यार करोगे जिस रब ने ये सब कुछ अता किया है? उसका लगाव कब लाओगे? क्या नमाज छूटने पर तुम कभी तड़पते हो? तुम्हें टेंशन होती है? घर में राशन नहीं है, बीवी कहेगी राशन नहीं है, टाइम पे घर क्यों नहीं आए? इसकी जवाबदेही के लिए आप पहले से जवाब तैयार करते, माइंड में क्या बोलना है। अपने रब के लिए भी कोई जवाब है आपके पास? क्या जवाब देंगे आप? क्या आपने यूं समझ लिया है कि हमें मरना नहीं? क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खौफ हमारे दिलों से उड़ गया या हमने जानबूझकर उड़ा दिया? ऐ लोगों, तुम्हारी मस्जिदें वीरान हैं, तुम्हारे बच्चे दीन से दूर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा स्टेटमेंट दिया, आप पढ़िए ना। हमारे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म सीखने के लिए अगर तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो वहां तक जाओ। अरब से चीन कितनी दूरी पर है? नबी ने दूरी बताया। पता ये चला कि इस्लाम में सबसे पहले तालीम याफ्ता होना जरूरी है। इस्लाम में जहालत का तस्वुर है ही नहीं।
اور یہ علم آپ کے مدرسے آپ کو صحیح معنوں میں دیں گے۔ آج ہم اسی سے غافل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مسجد اس لیے ہے تاکہ مولانا اپنا جیب چلائے۔ آپ ایک بات بتائیے نا، آپ لکڑی کے کاروباری ہیں، کیا مولانا لکڑی کا کاروبار نہیں کر سکتے؟ آپ کپڑے کے کاروباری ہیں، کیا مولانا کو کاروبار نہیں آتا؟ کیوں وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے پڑے ہیں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جو کوئی ایک مسئلہ دین کا جان جائے تو دوسرے تک پہنچانا فرض ہے۔ ہم تو فرضیت نبھا رہے ہیں، اور آپ کی فرضیت کیا ہے؟ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ ایسا کر لیں گے، وہ ویسا کر لیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ اپنے ذہن و دماغ کے تالے کو کھولیں، جہالت سے باہر نکلیں، علم حاصل کریں اور عالم دین بنیں۔ خود اپنی نمازیں درست کریں، اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ نماز کو کبھی آئے تو آپ یہ کوشش کریں 5 منٹ رک کر ہم اپنے اعوذ باللہ بسم اللہ کو درست کر لیں، جو الحمدللہ اور قل هو اللہ احد ہمیں آتا ہے اسی کو درست کر لیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے الحمدللہ یاد کر لیا تو ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ الحمدللہ میں ہا بھی ہے، عین بھی ہے، را بھی ہے، قاف بھی ہے، اور بھی صاد بھی ہے، کئی طرح کے الفاظ ہیں جن کا مخرج سے نکلنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں مخرج سے نکلا، حرف صحیح ادا نہ ہوا تو نماز تو منہ پہ ماری جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ حرف بدلا، معنی غلط ہوا تو ایمان بھی ختم۔ تو یہ سب ذمہ داری ہم لوگ خوب نبھاتے ہیں۔ اپنے رب سے لگاؤ پیدا کیجیے، اپنے رب سے محبت کیجیے، اپنے رب کا قرب پیدا کیجیے۔ میرے عزیزوں، انہی تمام باتوں اور ذمہ داریوں کے بعد ایک ذمہ داری جو انہی شریعت سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ حضرات